Hello बच्चों, we are back to the Tantra physics classes. Today I am discussing with you pulleys. पुलीज में भी हम न्यूटन्स लॉज यूज़ करते रहते हैं, इसलिए पुलीज और न्यूटन्स लॉज को हमने इकट्ठे पढ़ाना मुनासिब समझा। व्हाट इज अ पुली? पुली क्या है? पुली आपने देखा होगा, एक सर्कुलर रिंग होता है जिसके थ्रू एक ग्रू होता है, ग्रू थोड़ा सा, जिस ग्रू के अंदर या तो केबल होता है या रस्सी होती है या कोई और रोप जैसी चीज़ होती है। एंड इट इज़ रियली अ मशीन, दिस पुली इज़ अ मशीन, एंड दिस मशीन change the direction of the force sometimes. It changes the direction of the force. It makes the work easier by changing the direction of the force. But it does not reduce the amount of work. No. It doesn't reduce the amount of work. It makes the work easier by changing the direction of force. Or by even in some cases, sometimes it reduces force to do the same amount of work. So this is the definition for a pulley. A pulley is a machine which reduces force and changes the direction of the force to make the task easier. आपने देखा होगा कि how big weights and big these loads are being lifted by pulley, just by pulling, and the pulley rotates and the load is being lifted. But first of all, let's try to understand the properties of these pulleys. What are the properties of the pulleys? How they function? Point number one. This is the shape of the pulley. And the sitting over this, let me suppose this is the sitting over the pulley. This is the sitting, and these are the weights, M1 and M2. Right? And this M2, let me suppose it is M1, it is M2. Let me suppose this is heavier, it will go down. This is lighter, it may go up. हमें देखना है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है और इसके डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है. What is the, if it goes up by 1 meter, it goes down by how many meters? What is the relation between the displacement of this mass and displacement of this mass, right? And what is the relation between velocity of this mass and velocity of this mass? And what is the relation between acceleration of this mass and acceleration of this mass? Three types of relationships. Relationship between the displacements, relationship between the velocities, and relationship between the accelerations. Fortunately, same kind of equation is for displacement relation, velocity relation, and acceleration relation. As you know, if x1 is equal to x2, differentiate v1 is equal to v2, differentiate a1 is equal to a2. So if we have some set of relations for displacement, similar equations are for velocity and similar equations for acceleration. It's a good thing that we have to remember. So we don't have to remember too many things. If you understand the acceleration equation, you are done with the velocity equation. You are done with the displacement equations. So how it works? अगर ये पुली है, इसे पुली is a disc shaped with a groove. Over the groove we have a sitting, which sitting can move. It can go down, it can go up. ठीक? So the basic concept with the sittings is that the sittings connecting the two masses. The sitting connected different masses. Sittings connect different pulleys even, if there are too many pulleys. The sittings that connect pulleys, the sittings that connect masses in within the pulley system, the length of the sittings remain constant. It's a constant, the length of the sittings. Of the sittings remain constant. आफ्टर ऑल ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. अगर ये लॉन्गर होगा, ये शॉर्टर होगा, सो दैट द लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द स्ट्रिंग्स कैन नॉट स्ट्रेच.
they cannot compress. String length is the same. So let me develop the equations for suppose for displacements. तो मुझे आप बताइए within this system, select some point which is fixed and select that point as the origin of the coordinate system. That's all. तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी लिया जा सकता है, ये पॉइंट भी लिया जा सकता है, तो मैं ये पॉइंट को ले लूँ, इस पॉइंट को ले लूँ मैं ऑरिजिन. ठीक, तो ऑरिजिन से नीचे यहाँ तक सपोज it is y1 and from here to here it is y2. So what is the coordinate of this m1? m1 का कोऑर्डिनेट क्या है? That is y1. और इस y2 का m2 का कोऑर्डिनेट क्या है? That is y2. आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम y को ये जो डायरेक्शन है ये आपने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया, दिस डायरेक्शन यू हैव टेकन एज पॉजिटिव, y डायरेक्शन नीचे की ओर, और ये x डायरेक्शन है. इसको जाने दो, x डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, y डायरेक्शन में मोशन है. तो आपने वर्टिकली डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लिया. इट इज़ वेरी मच अलाउड, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट. मुझे बताइए ये जो इस पुली के ऊपर जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट है ही, वो तो चेंज कभी होगा नहीं. अगर चेंज होगा y2 होगा, y1 होगा, यहाँ से यहाँ चेंज होता है बिकॉज इट में मूव अप, इट में मूव डाउन, या इट में मूव अप, इट में मूव डाउन. सो y1 और y2 चेंज होने में अंदेशा है, y1 और y2 चेंज हो सकता है. लेकिन जो ऊपर पार्ट है ये वाला पार्ट, इट विल नॉट चेंज, सो यू नेग्लेक्ट इट. तो अब मैं क्या लिखूंगा? व्हाट शुड आई राइट? वैसे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो y1 कोऑर्डिनेट है, इसका y1 जो कोऑर्डिनेट है, इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं, कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं, वो वेलोसिटी देता है. डोंट फॉरगेट दैट. द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेलोसिटी. डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज एक्सेलरेशन. अगर मैं y1 का डिफरेंशिएट करूंगा, समझो वेलोसिटी मिला मुझे m1 का. अगर y2 का डिफरेंशिएशन होगा तो ये वेलोसिटी होगा m2 का. तो ये भी याद रखने वाली बात है कि अगर आप कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा. अगर 2 बार डिफरेंशिएशन कोऑर्डिनेट का करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा. इट्स वेरी सिंपल. अगर वेलोसिटी इसका है तो y डायरेक्शन में होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट चेंज होगा. तो पहली बात यह है कि व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, ये y1 जो है और ये y2, इनका जो सम है दैट इज कांस्टेंट. y1 प्लस y2 इज इक्वल टू कांस्टेंट. पहली बात तो यही है, y1 प्लस y2 इज कांस्टेंट. ठीक, जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं. y1 का डिफरेंशिएशन दैट इज v1, वेलोसिटी ऑफ दिस. जरा इसका डिफरेंशिएट कीजिए, दैट इज v2. यहां तो हो गया 0 बिकॉज राइट साइड में कांस्टेंट है. इसका मतलब v1 इज इक्वल टू माइनस v2, और डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, v1 इज इक्वल टू माइनस v2. और अगर और एक बार डिफरेंशिएट करोगे दैट इज a1 इज इक्वल टू माइनस a2. तो ये आप याद रखेंगे इस बारे में. देखो क्या हुआ, इसका मतलब इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी जो है वो सेम है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, मगर अपोजिट है. तो अगर इसका वेलोसिटी v1 ऊपर के ओर है और इसका वेलोसिटी नीचे की ओर, यही v है, सिर्फ डायरेक्शन में अपोजिट है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम है. इफ इट गोज v अपवर्ड्स इट गोज v डाउनवर्ड्स. अगर इट गोज a अपवर्ड्स एक्सेलरेशन, इट हैज एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एज v. अगर इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है. अगर इसका वेलोसिटी अपवर्ड है, इसका वेलोसिटी डाउनवर्ड है, मगर सेम मैग्नीट्यूड. सो इसका मतलब यह है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट्स है, ये 2 ऑब्जेक्ट्स m1 और m2 अगर है, और अगर ये कनेक्टेड है थ्रू ए पुली, दे आर कनेक्टेड थ्रू ए पुली, मगर पुली खुद फिक्स्ड है, पुली मूव नहीं कर रही है. अगर पुली मूव कर रही है तो फिर डिफरेंट थिंग्स विल हैपन. लेकिन फिलहाल ये सिंपल केस है, इफ 2 मास आर कनेक्टेड थ्रू ए स्ट्रिंग एंड ऑल्सो थ्रू ए पुली विच इज फिक्स्ड, देन देयर वेलोसिटीज इज द सेम, देयर एक्सेलरेशंस आर द सेम, देयर डिस्प्लेसमेंट्स आर द सेम. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे हैव द सिमिलर इक्वेशन. आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट सेम कैसे है? यह y1 डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ना y2 डिस्प्लेसमेंट है. ये तो स्ट्रिंग का लेंथ है यहां से और यहां से. y1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ m1, y2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ m2. तो अगर
डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको देखना है तो यहाँ इसका चेंज ले लो, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2, इसका चेंज प्लस इसका चेंज इज इक्वल टू कांस्टेंट का चेंज, वो जीरो है, कांस्टेंट चेंज होता नहीं है, कोई डेल्टा y1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा y2, ये भी हो गया। तो बात यह है कि देखो इस सिनेरियो में क्या होता है, two objects are connected through a pulley. If this goes 1 meter up, this goes 1 meter down. If it has 1 meter per second velocity upwards, it has 1 meter per second velocity downwards. If it has 1 meter per second square acceleration upwards, it has 1 meter per second square acceleration downwards. So magnitude wise, displacement is the same, velocity is the same, acceleration is the same. But in a particular in this very particular case, in this very particular case, अच्छा ये तो एक चीज हुआ, ये आप याद रखो। अच्छा अब ये स्टेटमेंट मैं देता हूं, if two objects are connected directly through a pulley which is fixed and the two objects are connected through a string, the length of the string remains constant. This constant length constant makes the two bodies to have same acceleration, same velocity, same displacement, but opposite in direction. अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ए का एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरे का उल्टा होगा। और ये सब आया कहां से, ये इससे आया कि y1 प्लस y2 इज कांस्टेंट बिकॉज द लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हैज टू रिमेन कांस्टेंट। एक का लेंथ बढ़ जाएगा, दूसरे का पार्ट कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका भी बढ़ जाए इसका भी बढ़ जाए, तो वो लेंथ आएगा कहां से, किसी को लेंथ छोड़ना है, किसी को गेन करना है। So total length of the string remains constant and that has made these equations possible. अच्छा अब दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। देखिए थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड केस। It is M1, M2, M3। मैंने आपको पहले भी कहा कि डिस्प्लेसमेंट का भी जो रिलेशनशिप होगा वो वेलोसिटी का भी वही रिलेशनशिप होगा और एक्सेलरेशन का भी वही रिलेशनशिप होगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए कोई एक रिलेशनशिप अगर निकालोगे तो आपको दूसरे रिलेशनशिप से इजीली आप कर सकते हो। देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसका कोऑर्डिनेट y1 समझो, इसका कोऑर्डिनेट y2 समझो, इसका कोऑर्डिनेट y3 समझो, इस मास का कोऑर्डिनेट y1 समझो। तो कहां से कोऑर्डिनेट शुरू करेंगे, यहां से, फिक्स पॉइंट ये है, तो यहां से यहां तक y1 है और इस y1 का डिफरेंशिएशन मास m1 का वेलोसिटी होगा। इस y2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो m2 का वेलोसिटी होगा। इस y3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो इस m3 का वेलोसिटी होगा। और y1 का डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस m1 का एक्सेलरेशन, इस m2 इस y2 का डबल डिफरेंशिएशन, इस m2 का एक्सेलरेशन, इस इस y3 का डबल डिफरेंशिएशन होगा एक्सेलरेशन ऑफ m3। ठीक, मैं देखना चाहूंगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एक्सेलरेशंस। चलो इसका एक्सेलरेशन मान लो a1 है, ठीक, चलो क्यों मानेंगे a1, देखते हैं। और क्योंकि आपने पहले ही कहा है कि जो एक्सेलरेशन जो y1 का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन है, ठीक है। आप बताइए मुझे, सपोज ये जो पुली है ना, अब ये पुली फिक्स तो है नहीं, अब देख लीजिए अगर ये ऊपर जाएगा, स्ट्रिंग तो कनेक्ट इस पुली से, पुली नीचे गिरेगा। तो इस पुली और इस पुली का केस डिफरेंट है। दिस पुली इज फिक्स्ड व्हाइल एज दिस पुली इज नॉट फिक्स्ड, इट इज मूविंग। सो डोंट यू थिंक दैट इसका जो वेलोसिटी वो इसके वेलोसिटी के बराबर होगा। आप कहेंगे ये ऊपर और ये नीचे और वेलोसिटी ठीक, या इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है, नहीं चलेगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली, नो डाउट, बट दे आर कनेक्टेड थ्रू ए पुली विच इज मूविंग। जब पुली ही मूविंग कर रहा है तो ये रिलेशन अप्लाई नहीं होता है। और अर्लियर केस में मैंने आपको स्ट्रेस किया, टू मासेस कनेक्टेड डायरेक्टली थ्रू ए पुली विच इज फिक्स्ड। आप वो चीज़ यहां लगा सकते हैं, इस मास और इस पुली के दरमियान, क्योंकि ये पुली और ये पुली कनेक्टेड, ये पुली और ये मास कनेक्टेड है।
लेकिन थ्रू अ पुली विच इज फिक्स, तो यहां और यहां आप लगा सकते हैं। चलो ठीक है, ओके। तो इस पुली का कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे y4, और अगर y4 का डिफरेंशिएशन में करूंगा वो इस पुली का वेलोसिटी होगा। अगर y4 का डबल डिफरेंशिएशन करूंगा वो इस पुली का एक्सेलरेशन होगा। बस ठीक। अब जरा देखो, लेट मी राइट डाउन द कांस्टेंट इक्वेशन। तो कांस्टेंट इक्वेशन कहां से मिलेंगे मुझे? कांस्टेंट इक्वेशन मिलेंगे कहां से? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स रिमेन कांस्टेंट, या तो दो स्ट्रिंग्स है, ये देखो, एक स्ट्रिंग और ये दो स्ट्रिंग इसके ऊपर से। अच्छा, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जस्ट कैटेगोरिकल स्टेटमेंट विच यू विल कीप इन योर माइंड। जो जितने स्ट्रिंग्स होंगे सिस्टम में, अलग अलग जितने स्ट्रिंग्स होंगे उतने इक्वेशंस बनेंगे। You have as many equations as the number of strings. अगर एक स्ट्रिंग है तो एक ही इक्वेशन, अगर सिस्टम में दो स्ट्रिंग है, तीन स्ट्रिंग है, तो आपको उतने सारे इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे और सॉल्व करने पड़ेंगे। यहां तो फिलहाल दो स्ट्रिंग्स है। तो पहला स्टेटमेंट जो मेरा है वो ये है कि लेंथ कांस्टेंट, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स remain constant, remain constant। ये चीज ठीक, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स रिमेन कांस्टेंट। चलो ठीक है, पहले मुझे बताइए इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? ये जो स्ट्रिंग यहां से यहां तक है, इस पार्ट आप लेंथ को छोड़ दो, उसका चेंज ही नहीं होता है। तो यहां से यहां तक y1 प्लस यहां से यहां तक y4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। एक स्ट्रिंग डिफरेंशिएट कीजिए, v1 प्लस v4 इज इक्वल टू 0, इस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। v1 इज इक्वल टू माइनस v4 हो गया, या a1 इज इक्वल टू माइनस a4 कर दिया। ये जो इसका वेलोसिटी होगा वही इसका भी वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये तो कनेक्ट डायरेक्ट है। इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी सेम है, लेकिन उल्टा है। उल्टा मीन्स व्हाट? उल्टा मीन्स अपोजिट है। अगर ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये नीचे की ओर जाएगा, अगर ये पुली ऊपर की ओर जाएगी तो ये मास नीचे की ओर जाएगा, विद द सेम वेलोसिटी, सेम डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर। जो जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये नीचे भी जाएगा। भाई देखो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कोई भी इक्वेशन आप निकालो, इट इज गुड फॉर ऑल द केसेस लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो मैंने वैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का निकाल ही दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का भी यही है। अगर ये 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा। ये पुली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज टू थिंग्स। अच्छा, तो कम से कम a1 इज इक्वल टू माइनस a4, और v1 का जो डिफरेंशिएशन है वो वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा। मैंने इसका भी डिफरेंशिएट किया और इसका भी डिफरेंशिएट किया। अच्छा, अब यहां दूसरा चीज, अब मुझे बताइए यहां what is the length here? y2। no, ये जो y2 है ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट जो होता है that is always in reference to the fixed point। ये y2 जो है ये यहां से यहां तक ये लेंथ नहीं है। ये y2 का जो लेंथ है वो इस ऑरिजिन से नीचे की ओर है। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़े हैं, आप कोऑर्डिनेट आप लोकेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, वो कोऑर्डिनेट हमेशा रेफरेंस पॉइंट से दूरी होता है। द एक्स कोऑर्डिनेट, हाउ मच इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो y2 है, इट इज मतलब रॉन्गली यू मे सपोज इट दैट दिस y2 शायद यहां से यहां तक ये y2 है। नहीं, ये y2 यहां से यहां तक है, लेकिन मुझे ये लेंथ चाहिए। यहां से यहां कितना लेंथ है? दैट इज y2 फ्रॉम हियर टू हियर, y2 माइनस y4, ये वाला y2 फ्रॉम हियर टू हियर माइनस y4 फ्रॉम हियर टू हियर। तो वो हो गया ये डिस्टेंस प्लस ये लेंथ y3 माइनस सेम y4, ये वाला, क्योंकि y3 जो डिस्टेंस है वो यहां से इधर से, लेकिन मुझे चाहिए ये लेंथ यहां से यहां। दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए ये लेंथ निकालना पड़ेगा, निकाला, और ये लेंथ निकालना पड़ेगा, वो भी निकाला। y4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, जरा करो इसका डिफरेंशिएशन, v2 जरा करो इसका डिफरेंशिएशन।
A4, ज़रा करो इसका डिफ्रेंसिएशन, A3, ज़रा सॉरी A नहीं V करना है। V4 प्लस V3 करो इसका डिफरेंशिएशन, माइनस V4 इज इक्वल टू 0। ये हुआ V2 प्लस V3, ये दो इज इक्वल टू 2 टाइम्स V4, 2 टाइम्स V4। अगर यहाँ ये V4 ये इसका वेलोसिटी, इस पुली का वेलोसिटी अगर वो देखना है V4 दैट इज V2 प्लस V3 बाय 2, ये भी चलेगा। मतलब इसका वेलोसिटी जो है इन दो का सम ऑफ द वेलोसिटीज बाय 2। अगर एक्सेलरेशन की बात आएगी तो A4 इसका एक्सेलरेशन A2 प्लस A3 बाय 2। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, नीचे की ओर बात करता हूं, अगर ये डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ या कुछ भी हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय 2। The velocity equations, the acceleration equation and displacement same। ये हो गया। यहां पर ये these are the constant equations, these are the constant equations। अच्छा, मैं उसको अब सिंपलीफाई करूंगा, लेकिन पहले ये सीखना पड़ता है ताकि आपको बाद में पता। देखो, अगर आप कोई चीज़ शॉर्टकट हो या कोई शॉर्टकट में उसको कहूँगा या ट्रिक कहूँगा, मैं उसको ट्रिक तभी याद रहेगा जब इस ट्रिक का आपको बैकग्राउंड का पता होगा। ये मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है। जब भी हमें पुली इक्वेशन, अब पुली कितना भी देखो, शायद आप सोचते हो कि मैं आई एम टेकिंग द सिंपल केसेस, लेकिन ये तो बेस रूल तो यही है। कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस क्यों ना हो, दीज आर द रूल्स विच वी विल अप्लाई, बिकॉज देयर आर नो न्यू रूल्स टू अप्लाई टू एनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कितना भी कॉम्प्लेक्स पुलिस सिस्टम क्यों ना हो, यही तो लगाना है, यही तो यूज करना है। ठीक, चलो मैं आप इसका थोड़ा सा आपको ट्रिक्स बताता हूं, लेकिन जरा ये V4 इज इक्वल V3 प्लस V2 प्लस V3 बाई 2 याद रखो। ये V4 तो यहां पर इसका वेलोसिटी है या इस पॉइंट का वेलोसिटी है। कोई इस पॉइंट का वेलोसिटी जो है वो इसका वेलोसिटी प्लस इसका वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, या इसका एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन प्लस दिस एक्सेलरेशन बाई 2। तो इसको जरा दिमाग में रखो। और ये कैसे आया है, वो यहां से आया, इस इक्वेशन से आया। इसको अच्छी तरह से देख लो। चलो, थर्ड पॉइंट। अच्छा चलिए, ओके, हैव ए लुक। मैं इसको आप, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए, आई विल सिंपलीफाई देम और आई विल मेक देम ए, जैसे जिसको आप ट्रिक कहते हैं। ये है पुली, ये है फिक्स्ड पॉइंट। नहीं, फिक्स्ड भी क्यों रखो, तुम मत रखो फिक्स्ड, जनरल बनाओ। और ये स्ट्रिंग है, इस पॉइंट का वेलोसिटी v1 है, इस पॉइंट का वेलोसिटी v2 है। एक यहां मास कनेक्ट होगा, उसका वेलोसिटी वो इस स्ट्रिंग का किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी होगा। इस पॉइंट का वेलोसिटी v3 है। इन तीन में रिलेशन है। अगर यहां a1 है, ये a2 है, ये a3 है, इन तीन में भी रिलेशन है। अगर इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ये भी स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग थोड़ा 1 मीटर ऊपर गया तो ये 2 मीटर गया, तो ये कितना जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट x1 यहां पर, यहां डिस्प्लेसमेंट x2, यहां डिस्प्लेसमेंट x3। ठीक, इस पॉइंट का वेलोसिटी भी दिया, एक्सेलरेशन भी, डिस्प्लेसमेंट भी, इस पॉइंट का तीनों चीज दिए, इस पॉइंट का भी तीनों चीज दिए। और मैं एक ही चीज का रिलेशनशिप लिखूंगा, बाकियों के लिए वही रिलेशनशिप चलेगा। ठीक, चलो, यह जो यहां इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है v1, इट इज इक्वल टू जो अभी हमने साबित किया। देखो यहां पर जो हमने साबित किया था, ये देखो यहां का v4, v2, v2 प्लस v3 बाई 2, बस वही करना है। देखो v1 यहां पर, इन दो का सम v1 v2 प्लस v3 बाई 2, खत्म। a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3 बाई 2, x1 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 बाई 2। आंसर, जनरल रूल। मगर देखो,
अब ये इस पॉइंट का वेलोसिटी v3 है सपोज, या 2 होगा या 4 होगा, लेकिन पता तो हो इज दैट वेलोसिटी अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो यहां मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, जब यह सिचुएशन हो तो आप डायरेक्शन दे दो, ऊपर की ओर पॉजिटिव का डायरेक्शन दे दो, आप नीचे की ओर भी पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं, आपकी मर्जी। यू हैव टू व्हाट शुड आई से टू दैट, आपको कन्वेंशन लेना है, आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। ऊपर पॉजिटिव ले लो तो ले लो, नीचे पॉजिटिव ले लो, वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन कभी कभी ऊपर पॉजिटिव लेने से अच्छा लगता है, मतलब सिचुएशन इजी हो जाता है, कभी नीचे पॉजिटिव लेने से सिचुएशन इजी हो जाता है। ये कॉपी कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट। मगर मैंने आपको देखो, इसके साथ मैंने ये भी आपको बताया, इसके साथ मैंने आपको बताया कन्वेंशन ले लो, ओके कन्वेंशन में हमेशा पॉजिटिव ले लो, फिलहाल पॉजिटिव ले लो ऊपर की ओर। अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आप फिर कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। अभी ज़रा देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा हाउ इट कैन वर्क आउट। हैव अ लुक। देखो फोर्थ पॉइंट, ये पुली है, इस पॉइंट का वेलोसिटी ऊपर की ओर 10 है, इस पॉइंट का वेलोसिटी चलो ऊपर की ओर 20 है। मुझे बताइए इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है। इन दो पॉइंट्स का वेलोसिटी दिया है, वो वहां से दिया होता है 10 ऊपर की ओर 10, वो डायरेक्शन भी दिया होगा। लेकिन जो ये v है ये आपको निकालना है। जिस चीज को निकालना हो, जिस चीज को निकालना हो तो उसका डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि उसका डायरेक्शन दिया होगा, उसका डायरेक्शन भी निकालना होगा, मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा। अब मैं क्या लिखूंगा, जो इस पॉइंट का वेलोसिटी है, इस पॉइंट का, चलो ऊपर का पॉजिटिव ले लेंगे फिलहाल, ऊपर का जो भी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव लेंगे। अब फिलहाल ये देखना है v, अगर v पॉजिटिव निकला तो समझो v का वेलोसिटी भी ऊपर की ओर है, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया। अगर v नेगेटिव निकला तो हमने कन्वेंशन ये लिया है, तो अगर v नेगेटिव मिलेगा हमें तो v का वेलोसिटी फिर नीचे की ओर है। तो क्या लिखोगे फॉर्मूला, दिस 10, चलो ये हम v1 करते हैं, ये v2 करते हैं, ये v3 करते हैं। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, आपके पास फॉर्मूला है v1 इज इक्वल टू v2 प्लस v3 बाय व्हाट, बाय 2। ये आपके पास फॉर्मूला है। इस पॉइंट का वेलोसिटी इज इक्वल टू इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी बाय 2। ठीक, ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला। कैसे आप यूज करेंगे, v1 10 पॉजिटिव लिया क्योंकि हमने कन्वेंशन में लिया पॉजिटिव, इज इक्वल टू व्हाट इज v2 20, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। अगर ये नीचे होता तो नेगेटिव लेना पड़ता है। इधर फॉर्मूला लिखा था आपने, किस्मत से जो फॉर्मूला है तो वो है, लेकिन अपने किस्मत से यहां पर नेगेटिव भी हो सकता है, वो इस कन्वेंशन की वजह से। प्लस व्हाट इज v3, वो निकालना है बाय 2। ठीक, सो इट इज 20 क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस v, 20 to 1 फिनिश, v इज इक्वल टू 0। इसका वेलोसिटी नहीं है, ये रेस्ट में है ये पॉइंट। अब ये नहीं कहना, देखो सर आप कह रहे हैं कि जो इसका वेलोसिटी वही इसका भी वेलोसिटी, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। वो तब बताया था जब when pulley is fixed, when this pulley is fixed then this 20 would have been this 20 downward। यहां पुली भी मूव कर रहा है, इसलिए वो मत समझो कि ये ऊपर गया ये नीचे गया। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी आप ऐसे ये ऊपर और ये नीचे, और ये सोचते कि इसका क्या हो रहा है। अच्छा चलो इस 10 को 0 कर दो, फिर देखो, चलो फिर देखते हैं, 10 को 0 करते, इसको 0 कर दो। अगर इसको 0 करो ये फिक्स हो गया पुली, तो फिर ये v - 20 होना चाहिए। देखो देखो कैसे, देखते हैं। चलो ये आपने कॉपी किया, चलो 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 फिर से इसी को ले लो। व्हाट इज v1 हियर, चलो मान लिया 0 फिक्स इज इक्वल टू व्हाट इज v2, दैट इज 20 अप प्लस v, वो निकालना है, डिवाइड बाई 2। तो 2 यहाँ पर गो 0 इज इक्वल टू 20 प्लस v, तो v क्या मिला -20। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ का जो वेलोसिटी वो डाउनवर्ड्स है, वजह आपने ऊपर की ओर पॉजिटिव लिया है, क्योंकि जब ये 20 की बात आई v20, इसको आपने +20 लिया, जब आपको v मिला वो -20 मिलना भी चाहिए। अब ये ऊपर गया ये नीचे गया बिकॉज इट इज फिक्स्ड। समझे, सोचने की कोशिश करो। पुली जो है, पुलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है इजी, है बहुत इजी।
बस 2 का 4, 4 का 2, इसी खेल चलता है पुलिस के साथ। ओके, नाउ लेट मी गो टू अनदर पॉइंट, 5th पॉइंट। चलो और एक प्रॉब्लम आपको कराते हैं। ये पुली है, ठीक, ऊपर की ओर 20 वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस मास का वेलोसिटी नीचे की ओर 70। बताइए इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? चलो ऊपर ले लो पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव ले सकते, कोई टेंशन नहीं है। फिर आपको यह फैसला करना है। अभी देखो, अगर ये V मुझे निकला पॉजिटिव तो समझो ये पॉइंट ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अगर ये पॉइंट मिला मुझे नेगेटिव, समझो कि ये नीचे की ओर मूव कर रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर की ओर पॉजिटिव का कन्वेंशन दिया है। तो 20 इज इक्वल टू, यस 70, मगर ये फार्मूला लिखूंगा कोई V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3/2। तो 20 इज इक्वल टू व्हाट इज 70 माइनस 70 प्लस V3, दैट इज दिस V/2। ठीक चल रहा है? अब आप कहेंगे आपने -70 क्यों लिखा? अपोजिट कन्वेंशन है, फॉर्मूला यही है, लेकिन बहुत ही तरीके से यूज करना है। अगर तरीके से यूज नहीं करोगे गलत होगा। यू हैव टू यूज द फॉर्मूला इन ए वेरी वाइज वे, ए वाइज मैनर। तो क्या लिखूंगा? ये 40 हो गया इज इक्वल टू -70 प्लस V। तो V इज इक्वल टू 70 इस साइड, 70 इस साइड, वो हो गया 0, 1 मीटर्स पर सेकंड। मगर पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव। अगर ये 70 नीचे है तो ये पॉइंट कैसे ऊपर जा सकता है, अनलेस ये अच्छा खासा 110 न बन जाता। ये 110 है, ठीक। तो इस तरह से ये ऊपर की ओर वेलोसिटी है, बिकॉज पॉजिटिव है। इस तरह से आप पुली को यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ पर एक सिंपलीफाइंग फैक्टर है, या एज ए मैटर ऑफ गुड लक, कि वेलोसिटी का इक्वेशन, एक्सेलरेशन का इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन एक ही है। दैट इज द सेम थिंग। चलो 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा, बेटा देखो, यू सी, पुली जो है, जनरली वी टेक पुलीज टू बी मासलेस। थोड़ा सा मास तो होता ही है, मगर एज कंपेयर टू अदर masses in the system, the pulley may have very small mass and can be neglected. So first of all, I will take the case of massless pulley. Massless pulley. And massless strings. इनका क्या है? What are the rules? Few rules इनके क्या है? देखो, पहली बात ये है कि जब मैं एक पुली लेता हूँ ऐसे कुछ, ये है स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग और ये है स्ट्रिंग, ठीक। आपको पता है जो टेंशन स्ट्रिंग में डेवलप होता है, टेंशन ऑलवेज पुल्स, टेंशन ऑलवेज पुल्स, एंड टेंशन इज द सेम along ए स्ट्रिंग विच इज मासलेस। जो मासलेस स्ट्रिंग होता है उसमें टेंशन हर जगह सेम होता है। अगर स्ट्रिंग का मास है तब टेंशन सेम नहीं है। आई हैव बीन रिपीटिंग दिस वन अगेन एंड अगेन बिकॉज इसमें स्टूडेंट गलती करते रहते। मासलेस स्ट्रिंग है तो उसका टेंशन हर जगह सेम होता है, ठीक। चलो, तो पहली बात ये जो ऊपर ये स्ट्रिंग है तो ऐसे, ये टेंशन जो इस पुली पर एक्ट करेगा यहाँ डाउनवर्ड्स होगा, बिकॉज इट पुल्स अवे फ्रॉम द बॉडी तो यहाँ पर भी पुली है, तो यहाँ पर भी टेंशन T डाउनवर्ड्स और यहाँ पर टेंशन ऊपर की ओर T डैश। वजह यह है कि ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग सेम नहीं है। जब स्ट्रिंग चेंज होगा, डिफरेंट स्ट्रिंग बनेगा, स्ट्रिंग जब डिफरेंट होगा सिचुएशन में, किसी केस में, तो वहाँ टेंशन भी डिफरेंट होगा। लेकिन अगर ऊपर ये स्ट्रिंग बढ़ जाता है तो टेंशन T डैश यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अच्छा, अब ये जो पुली है ये मासलेस है, ये मासलेस है, ठीक। अगर ये मासलेस है तो आप मुझे बताइए, कैन यू टेल मी व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन T डैश एंड दिस T एंड दिस T? क्या रिलेशन होगा, बता सकते हैं आप? व्हाट इज द रिलेशन?
What is the relationship? The relationship is F is, okay, let me go to Newton's law. F is equal to ma. Is that right? F जो है बताइए नेट फोर्स क्या है पुली पर? T डैश ऊपर की ओर, नीचे की ओर कितने फोर्स है? -2T इज इक्वल टू ma. ठीक है ना? फिलहाल ठीक चल रहा है. दिस T डैश -2T इज इक्वल टू व्हाट इज m? 0. एक्सेलरेशन हो या ना हो, मतलब यह पुली एक ही जगह हो, अपनी जगह हो, तो हो गया इसका एक्सेलरेशन 0. अगर मूव भी कर रहा हो, अगर एक्सेलरेशन है भी, अरे यार एक्सेलरेशन अगर कुछ भी नहीं है तब भी 0 है, कुछ है तो तब भी 0 है, 0. ये मतलब सेम रूल विल बी अप्लाइड टू pulley which the test are moving with an acceleration same. क्योंकि यहां एक्सेलरेशन 0 है तब भी ये 0 होगा, अगर एक्सेलरेशन कुछ होगा भी पुली का तब भी 0 है. ऐसा नहीं कि पुली एक ही जगह है तब ये रूल लगाओगे, पुली एक्सेलरेट भी करता हो तब भी यही रूल है. मैं लिखूंगा बाद में, ये हैव अ लुक. तो T डैश इज इक्वल टू 2T, खत्म. मतलब ये जो T डैश है इट इज सम ऑफ दीज टू फोर्सेस. इसका मतलब नेट फोर्स अक्रॉस द पुली इज ऑलवेज 0. ऊपर वाला फोर्स जो पुली पर होगा उतना ही फोर्स नीचे की ओर डाउनवर्ड्स होगा. तो एक स्टेटमेंट में लिखना चाहता हूं जो बहुत ही जरूरी है, यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया पहले. द नेट फोर्स अक्रॉस ए मासलेस पुली, अक्रॉस ए मासलेस पुली इज ऑलवेज 0 whether the pulley is at rest or the pulley is accelerating. I will write it down. Let's write it down. Sixth point, the net force. Net force across a pulley. Across a pulley is 0. Is 0. The net force across a massless pulley. Massless pulley is 0 whether it is at rest, whether the pulley is at rest or moves with acceleration. रेस्ट का मतलब और एक चीज होता है यूनिफॉर्म मोशन. मतलब पुली जो है रेस्ट में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो या एक्सेलरेशन कर रहा हो, उस पर नेट फोर्स 0 है. यानी कि अगर उस पर फोर्सेस होंगे भी, फोर्स नेट फोर्स अक्रॉस द पुली इज 0. अगर पुली हॉरिजॉन्टल फोर्स है, फोर्स टू द राइट ऑफ द पुली इज इक्वल टू फोर्स टू द लेफ्ट ऑफ द पुली. अगर वर्टिकल फोर्स है, फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये याद रखने वाली बात है. सेवंथ पॉइंट. ये देखिए एक पुली का प्रॉब्लम ये है, ये मास m1 है और ये मास m2 है. मुझे m2 का एक्सेलरेशन निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है m2 का. देखो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब भी किसी सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना हो, एक ऑब्जेक्ट हो या दो ऑब्जेक्ट हो या पुली, सारा कुछ, अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी हो, अगर आपको एक्सेलरेशन की जरूरत है, इमीडिएटली व्हाट शुड कम टू योर माइंड? Immediately what should come to your mind is the forces acting on the system. ठीक, उस फोर्सेस में इंटरनल फोर्सेस भी होंगे, एक्सटर्नल भी फोर्सेस होंगे. वैसे इनमें से ज़्यादा ज़रूरी जो होता है फोर्सेस, वो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं. और फिर पता भी चलना चाहिए भाई व्हाट इज एक्सटर्नल, व्हाट इज इंटरनल. एक्सटर्नल क्या है और इंटरनल फोर्स क्या है, वो पता चलना चाहिए. लेकिन वो तभी पता चलेगा जब आप अपना सिस्टम डिफाइन करोगे. और फिर उस अपने सिस्टम को डिफाइन जब करोगे, भाई ये मेरा सिस्टम है, फिर उस सिस्टम के बाहर वाले फोर्सेस भी नजर आएंगे और अंदर वाले फोर्सेस भी नजर आएंगे.
अगर सिस्टम ही डिफाइन नहीं किया तो कैसे चलेगा? हाउ कैन यू फाइंड द मतलब एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस? अगर जो फिर सिस्टम आपने लिया, अगर उसी सिस्टम में कोई दूसरा या खुद आप उस सिस्टम में एक छोटे से पार्ट को आप सिस्टम मानोगे, उसमें इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स चेंज हो जाएंगे। तो पहले आपको सिस्टम देखना पड़ेगा, व्हाट इज योर सिस्टम। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि उस चीज को सिस्टम मान लो आप जिस पार्ट में उस पार्ट को सिस्टम बनाओ जिस पार्ट में ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन सेम हो। क्योंकि अगर 4-5 ऑब्जेक्ट सिस्टम में है या 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम में है, 2 ही ऑब्जेक्ट या 3 ही ऑब्जेक्ट सिस्टम में है, आप उन 3 ऑब्जेक्ट्स को सिस्टम मान लो अगर तीनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम है। इट इज बेटर टू कंसिडर दोज ऑब्जेक्ट्स ए सिस्टम whose the acceleration of those objects if they are the same। ये बहुत अच्छी बात होगी। मेरा इस पे तजुर्बा है कि there are many objects within this system which have the same acceleration, take them as the system। और जब उसको सिस्टम मान लिया आपने, फिर आपको एक्सटर्नल फोर्स भी नजर आएंगे और इंटरनल फोर्स भी नजर आएंगे अच्छी तरह से। इंटरनल और एक्सटर्नल, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम विच यू कंसिडर। उस पर इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स डिपेंड करते हैं। चलो मुझे ये एक्सेलरेशन इसका निकालना है। पहले फोर्स से देखूं, इस m2 पर फोर्स m2g है नीचे की ओर, टेंशन पुल्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टेंशन पुल्स दिस। अगर इस पर भी देखो तो इस पर टेंशन यू होगा, ये t, उस पर टेंशन t होगा, और ये फोर्स एक्सटर्नल है m1g। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है, इसका भी एक्सेलरेशन a होगा। क्यों? बिकॉज दीज आर द 2 ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड डायरेक्टली थ्रू ए पुली विच इज फिक्स्ड। ये फिक्स्ड है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन सेम है, दोनों का वेलोसिटी भी सेम होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। अभी आपको बताया। तो अब क्या आप इसको सिस्टम लेंगे? तो ले लो, योर चॉइस। आप इसको सिस्टम लोगे तो ले लो, योर चॉइस। मैं बताता हूं, अगर आप इसको सिस्टम लेते हैं तो इस पर 2 एक्सटर्नल फोर्स है, m2g और t, दोनों एक्सटर्नल फोर्स है। अगर इसको आप सिस्टम लेते हैं तो इस पर भी 2 एक्सटर्नल फोर्स है, t एंड m1g। अगर इस पुली को सिस्टम मानोगे, पुली को, इस पर भी 2 फोर्स है, t एंड t। आपकी मर्जी, आप इसको भी सिस्टम मान सकते हैं। लेकिन देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन सेम है, मैं दोनों को मिलाकर एक सिस्टम बनाऊंगा, इसको सिस्टम बनाऊंगा ऐसे सिस्टम, because both these objects are moving with the same acceleration, so why should I take them two systems? I will take them a single system। अब ये जो सिस्टम मैंने बनाया है, इस पर देखिए एक्सटर्नल फोर्स क्या है। एक्सटर्नल फोर्स, because only external force is important, that is m2g, क्योंकि ये t तो इसके साथ कैंसिल होगा, ये t इसके साथ कैंसिल होगा, ये तो इंटरनल हो गए। सो जब आप सिस्टम डिफाइन करोगे तभी आपको पता चलेगा इंटरनल एक्सटर्नल क्या है। अगर आपने इसको सिस्टम बनाया होता तो इसके एक्सटर्नल ये दोनों है, लेकिन ये मास जब मैंने एक सिस्टम बनाया तो मुझे पता चला ये टी और ये टी तो अंदर गायब, ये टी और ये टी ये तो गायब हो गए अंदर, तो अंदर ही चले, अंदर सिस्टम के। सो दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। इन दो का जो एक्सेलरेशन है टुगेदर, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स दैट इज m2g माइनस m1g, ये और ये। And what is the acceleration of this system? That is the acceleration of this or this, एक ही बात है। That is m2g minus m1g divided by mass। किसका मास? इसका इसका मास, मास सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम जो लिया m1 plus m2। आंसर, that is the answer, सिंपल। अगर आप दूसरे तरीके से करोगे फिर इसका भी निकालना पड़ेगा इक्वेशन, फिर ये इक्वेशन निकालना पड़ेगा। कहो तो मैं उससे भी दिखा दूंगा आपको। चलो ये देखो, यहाँ पर एक्सेलरेशन m2g माइनस टी डिवाइड बाई m2 हो गया इसका, फिर इसका एक्सेलरेशन वो भी यही है, दैट इज t माइनस m1g बाई m1।
अब इन दो को इक्वेट करो, टेंशन निकलेगा, फिर टेंशन को सबस्टिट्यूट करो तो एक्सेलरेशन मिलेगा। कितने पापड़ झेलने पड़ते हैं यहाँ पर। अरे भाई देखो, अगर एक्सेलरेशन को इक्वेट करोगे तो टेंशन निकलेगा। हाँ, अगर टेंशन निकालना हो फिर तो अंदर जाना ही पड़ेगा, फिर तो सिस्टम के अंदर ही जाना पड़ेगा, फिर तो ये इक्वेशन आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर फाइंडिंग टेंशन। लेकिन यहाँ टेंशन की बात नहीं थी, यहाँ इसकी एक्सेलरेशन की बात थी। चाहे ये एक्सेलरेशन सिस्टम का, तो मैंने सिस्टम लिया दोनों मास को और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को कंसिडर किया है। इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन नो टाइम। ओके, नाउ लेट मी गो टू one more problem. Let me go to another problem, that is this one. Have a look. These are the two masses, 1 kg and 1 kg mass. मुझे टेंशन निकालना है, लेकिन स्ट्रिंग तो एक ही है ना, एक ही स्ट्रिंग है, 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 एक ही। टेंशन इज द सेम, इट इज टी पुल्स, टी पुल्स, टी पुल्स, टी पुल्स, ये फिक्स्ड पुली है, टी पुल्स। तो इस पर एम जी का फोर्स है, दैट इज ओके, दैट इज एम जी, दैट इज 1 × 10, दैट इज 10 न्यूटन। मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो जरा, अगर इसका एक्सेलरेशन, ये तो सीधे सीधे इसको कनेक्ट है विद 2 पुलीज, बट 2 पुलीज आर फिक्स्ड, इनका कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब जो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा वही एक्सेलरेशन इसका आगे की ओर होगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। जो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है वही इसका एक्सेलरेशन आगे की ओर होगा, क्योंकि ये बॉडी और ये बॉडी स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट है। पुलिस भी है 2, लेकिन वो जो पुलिस है वो तो फिक्स्ड है, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट, दे विल हैव नो रोल, इसलिए इसका एक्सेलरेशन सेम है। वो मैंने आपको बताया कि व्हेन 2 पुलिस आर फिक्स्ड देन दे हैव नो रोल इन एक्सेलरेशंस। इसका ये और ये एक्सेलरेशन सेम है, तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। यहां पर भी अगर एक ही सिस्टम लो तो अच्छी बात है, 2 सिस्टम लो तो अच्छी बात है, लेकिन देखो पहले एक सिस्टम लेना चाहूंगा। देखो हैव अ लुक। तो बट व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल। अगर मैं ये मास और ये मास एक ही सिस्टम लेता हूं, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ए एंड ए। If different parts have the same acceleration, then all those parts together can be taken as a system. That makes the problem very easy. चलो, external force. क्या ये T external है? No. देख मैं आपको बताता हूँ. Have a look. ये देखो, सिस्टम बना दिया, अंदर चला गया, ये भी अंदर, ये भी अंदर, बाहर तो सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स है, F external 10. What is the acceleration of this system? 10 force divided by mass, that is 1 and 1, 2 kg, that is 5 meter per second square. Answer. चलो अब यहां से टेंशन निकालते हैं। अब इसको सिस्टम समझो, क्योंकि टेंशन निकालने के लिए सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, चाहे यहां जाओ या यहां जाओ। यहां जाना चाहो तो ये भी चलेगा, यहां जाना चाहो तो ये भी चलेगा। चलो यहां नहीं, यहां जाऊंगा। चलो बताइए इस पर क्या फोर्स है, टेंशन। F is equal to ma से निकालो। What is F? That is tension. What is m? 1 kg. What is A? 5 Newton. Answer. अगर यहाँ निकालो तो यहाँ भी निकलना चाहिए। देखो लगाओ इसको फॉर्मूला, F is equal to ma. What is F? Net force. That is 10 minus T is equal to, what is m? 1. What is A? 5. इसका एक्सेलरेशन। T is equal to, ये यहाँ ले लो, 5 को उधर ले लो, 10 minus 5, that is 5 again, कहीं भी निकालो, खत्म। One more. This one. ये जो ऑब्जेक्ट है A, it goes down with a velocity of 4 meter per second. तो मुझे इस B का वेलोसिटी आगे की ओर क्या है ये निकालना है। ठीक, तो क्या रूल है, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड्स,
यही वी बी, क्योंकि इस पॉइंट ये पॉइंट भी तो फिक्स्ड है, ये पॉइंट वेलोसिटी। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट का वेलोसिटी सेम एज दिस पॉइंट का वेलोसिटी, वो नहीं कह सकते, लेकिन इन सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी यही है, डाउनवर्ड्स वी बी। अच्छा, अब इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? ये तो यहाँ फिक्स है, इसका मतलब यहाँ पे जीरो वेलोसिटी, 0 0 0 0 0 0, यह जीरो वेलोसिटी है। अब बताइए यहाँ का वेलोसिटी 4 है, इस पॉइंट का वेलोसिटी, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है 4 के हिसाब से नीचे गिर रहा है, तो इसका वेलोसिटी भी 4 नीचे की ओर है। अब लगाइए फार्मूला इस पुली को, क्या फार्मूला है इस पॉइंट का वेलोसिटी? चलो, आप डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेना चाहेंगे कि अपवर्ड पॉजिटिव लेना चाहेंगे? चलो यहाँ अब डाउनवर्ड में पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक, क्या है ये 4 वेलोसिटी? डाउन है ना। चलो इसको समझो V1, इसको समझो VB, इसको समझो V1, इसको समझो V2। तो व्हाट इज फॉर्मूला विद यू? V1 इज इक्वल टू V2, ये V1 और ये V2 और ये V3। V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3/2। पुली क्या इस पॉइंट का वेलोसिटी, सम ऑफ दीज टू वेलोसिटीज बाय 2। ये हमने किया है, अभी किया है। इस पॉइंट का वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी बाय 2। अच्छा, व्हाट इज V1? ये वाला वेलोसिटी 4। मुझे ये देखना है ये वेलोसिटी क्या है, VB का वेलोसिटी। इट इज 4 इज इक्वल व्हाट इज V2? दैट इज VB प्लस व्हाट इज V3? दैट इज 0/2। ये सीधी बात थी कि अगर आप ऐसे ही कर लेते, 4 इज इक्वल टू VB प्लस 0/2, दिस 4, दिस पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी बाय 2। ये करने की जरूरत ही नहीं है, अब फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, व्हाट इज VB? 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर गो, दैट मीन्स ये 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, ये 8 मीटर पर हिसाब से चल रहा है। और ये जो रस्सी है इसके 2 पीसेस हो जाते हैं, 4, ये 4 यहाँ से और 4 यहाँ से और 4 नीचे चला गया। ये देखो, विदाउट डूइंग दैट इट्स नॉट गुड टू सी व्हाई इफ दिस इज 8 व्हाई दिस इज 4। ये जो 8 है, अगर ये 8 मीटर आगे जाएगा, वो 8 मीटर 4 मीटर और 4 मीटर और 4 ही मीटर नीचे चला जाएगा। वो दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। कि कभी कभी आप सोचते हैं नहीं सर ये 8 था, अब ये 8 क्यों नहीं नीचे जा रहा है? अरे भाई, ये 8 मीटर के हिसाब से वो नीचे, हमें देखना है कि पुली कितना नीचे जाएगा। पुली जाएगा, ये 2 स्ट्रिंग्स है, ये 8 जो है 2 स्ट्रिंग्स पे तकसीम होकर के 4 से नीचे चला जाएगा। ठीक हो गया। नाउ वन मोर प्रॉब्लम, इट्स इंक्लाइंड प्लेन। ये 30 डिग्रीज का एंगल लेता हूं मैं। ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, मास m का, और ये स्ट्रिंग है, और ये पुली, और ये मास। अब ये भी पुली यहाँ ही बनाओ, यहाँ पुली एक बनाओ, और पुली को यहाँ फिक्स करो फिर से। ठीक, और यहाँ पर मास ओके 2m कर दो। ठीक, मुझे इसका एक्सेलरेशन चाहिए, इसका एक्सेलरेशन मुझे चाहिए। ठीक, इसका एक्सेलरेशन चाहिए मुझे। अगर इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर a है, हो गया इसका एक्सेलरेशन a, तो यहाँ इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये 0 है। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए ताकि ये नीचे a हो जाए? इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या 2a होना चाहिए नीचे की ओर, तभी तो होगा। 2a प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज a, 2a हियर डाउन, क्योंकि यहाँ भी ये भी डाउन है। 2a प्लस 0 डिवाइड बाई 2 शुड बी द एक्सेलरेशन दिस, वो तो है। इसका मतलब अगर ये a डाउन है, ये 0 है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। फॉर्मूला लगाने के बगैर भी, या फॉर्मूला भी लगा, इसके यहाँ पर एक्सेलरेशन सब जो a डैश प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू दिस a, ये वाला a, ये वाला a, वो ये a के बराबर है, क्योंकि दिस a एंड दिस एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2m इज द सेम। सो a डैश इज इक्वल टू 2a। समझ आ रहा है कुछ? ये जो एक्सेलरेशन है ये मुझे निकालना है। मैंने इसको a समझा। अगर ये a है, ये तो 0 है बिकॉज दिस इज फिक्स्ड हियर, ये यहाँ फिक्स्ड है, ये 0 है, तो यहाँ इस पॉइंट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड क्या होना चाहिए? 2a, क्योंकि ये भी डाउन है ना, तो ये कैसे अप होगा? ये भी डाउन होना चाहिए, ताकि 2a प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज a डाउन।
2a down plus 0 divided by 2 is a down here. Okay. नाउ अगर ये 2a का यहाँ एक्सेलरेशन है, मुझे ये एक्सेलरेशन निकालना है, a निकालना है, तो इसका एक्सेलरेशन 2a इस पॉइंट का, इस पॉइंट 2a इसका भी एक्सेलरेशन मास का जो यहाँ एक्सेलरेशन है. अब एक्सेलरेशन अगर निकालना है, बी केयरफुल, यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्सेस. तो यहाँ का फोर्स देखो, मैं आपको बताता हूँ, हैव ए लुक. ये mg sin 30, ये टेंशन T, ये टेंशन T, ये टेंशन T ऊपर की ओर इस पुली पर, ये टेंशन भी T, सेम स्ट्रिंग, और ये टेंशन नीचे की ओर 2T, बिकॉज नेट फोर्स अक्रॉस द पुली इज 0. जितना फोर्स ऊपर की ओर उतना फोर्स नीचे की ओर. 2T डाउन ऑन दिस पुली, 2T अप ऑन दिस. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन. अगर यहाँ पर फोर्स 2T है तो यहाँ 2T ऊपर की ओर, और यहाँ 2mg. बस अब हो जाएगा. पहले हमें ये एक्सेलरेशन को लेकर के इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए वो निकाला, फिर फोर्सेस हमने मतलब डिफाइन किए या पिन पॉइंट किए फोर्सेस कहाँ से क्या है. इसका यू कैन नॉट टेक दिस मास एंड दिस मास एज ए सिस्टम. पहले यही क्लियर कीजिए. वजह, इसका एक्सेलरेशन 2a है, इसका a है, तो व्हाई शुड यू टेक देम एज ए सिस्टम? नो, मैंने स्ट्रेस किया है, इफ too many objects, if some objects have the same acceleration, then they can be taken as a system. तो जरा इसका इक्वेशन लगा दो आप. 2ma is equal to 2mg minus 2t. फिलहाल तो हो गया ये इक्वेशन, ये इस बॉडी का मैंने लगाया इक्वेशन. आई कैन नॉट अप्लाई सिंगल इक्वेशन बिकॉज टू मासेस कैन नॉट बी टेकन एज ए सिस्टम. तो यहां पर दिस T 2ma, यहां पर भी 2ma, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन. 2ma इज इक्वल टू, हाँ, T माइनस mg साइन थीटा, दैट इज mg बाई 2. दैट इज mg बाई 2, क्योंकि साइन थीटा 1/2. ये T माइनस दिस फोर्स बाय T माइनस दिस फोर्स, दैट इज mg बाई 2, mg साइन थीटा, दैट इज mg बाई 2. तो अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन. देखो मैं क्या करता हूँ, ये T तो अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब इस नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो इक्वेशन क्या मिला मुझे ऊपर? 2ma इज इक्वल टू 2mg माइनस 2t. नीचे 4ma इज इक्वल टू 2t मल्टीप्लाई करके माइनस mg मल्टीप्लाई जब किया. अब ऐड कर लो, ये ख़त्म. ऐड करने से 2t ऊपर, नीचे 2t ख़त्म. ये हुआ 6ma इज इक्वल टू mg हो गया mg. ऐड करना है ना, 2mg को mg निकालना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 2t कैंसिल हुआ तो m ख़त्म. a इज इक्वल टू g बाई 6. आंसर, दैट्स द आंसर. एक दो बार कर लो इस प्रॉब्लम को, बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. ऑब्जेक्ट्स किसको सिस्टम लेना चाहिए, किसको सिस्टम नहीं लेना चाहिए. यहाँ मैंने इस 2m और m को सिस्टम नहीं लिया है. वजह, इस 2m का एक्सेलरेशन a था, इसका 2a. अगर इन दो का एक्सेलरेशन सेम होता तो मैं सिस्टम ले लेता और एक्सेलरेशन एक ही झटके में मैं निकालता. सिर्फ वहाँ सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का ही मुझे अकाउंट लेना था, तो I would have done it. So you continue to watch these lectures. They are very important lectures and they will improve your level. They will prepare you for the national exam. Thank you.